Hello students, I hope that all of you are fine at your home. In today's class, we shall discuss the electric field intensity due to two infinite plane शीट्स। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की ड्यू टू वन इनफाइनाइट प्लेन शीट। नाउ in today's lecture we are considering a special case in which we are assuming or considering two infinite plane sheets, and these two infinite plane sheets are placed parallel to each other. One sheet is this sheet number 1 and another sheet is this sheet number 2. Both the sheets are uniformly charged. Uniform distribution of positive charge is there on the surface of these two infinite plane sheets. Here we shall use relation for electric field intensity due to a single infinite plane sheet, which was E is equal to sigma upon 2 epsilon 0. Directly we shall use this relation. Actually, what is our aim? In today's topic, our aim is to calculate electric field intensity, or we can say electric field at this region, first region, which is falling towards the left side of the first plate, the second region, which is in between the two infinite plane sheets, and this is the third region, which is towards the right side of second infinite plane sheet. So to calculate electric field intensity at first region, second region, third region, we should first discuss physics behind it. What is physics in this case? It means first we want to know the direction of the electric field due to both sheets. To know the direction, first we assume that E1 is the electric field of sheet 1 and E2 is the electric field of sheet 2. E1 is the electric field for sheet 1 and E2 is the electric field due to sheet 2. So this sheet is positively charged, uniformly charged by a positive charge. Positive charge is uniformly distributed over the surface of this infinite plane sheet. So we know it very well that the electric field lines go away from the positive charge. So the electric field due to first plate at this point in first region, this is the region first, this is the region second, and this is the region third. So in region first, region second, and this is region third. So in region first, what is the direction of electric field E1 due to this first plate? It obviously it will be away from the plate.
पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए ये प्लेट से दूर जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द चार्ज जाती हैं. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in first region, and in second region due to first plate the direction of the electric field will be like this, isn't it? वापस समझें. फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का डायरेक्शन रीजन फर्स्ट में लेफ्ट साइड की तरफ होगा जो कि प्लेट से दूर जाएगा. सेकंड रीजन में टूवर्ड्स सेकंड प्लेट होगा, यानी ये फर्स्ट प्लेट से दूर जाना चाहिए. पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम फर्स्ट प्लेट जाना चाहिए. सॉरी, दिस इज E1 not E2, this is E1. E1 is the electric field due to this plate. हमने इस प्लेट 1 के कारण इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लिया जो कि प्लेट से दूर जा रहा है. राइट साइड में ये राइट की तरफ जा रहा है तभी ये प्लेट से अवे होगा, और लेफ्ट साइड में ये लेफ्ट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तभी ये प्लेट से अवे होगा. और थर्ड रीजन में देखें, थर्ड रीजन में भी हम E1 का डायरेक्शन देखें तो ऑब्वियसली ये दूर ही जाएगा. सो थर्ड रीजन में भी E1 का डायरेक्शन फर्स्ट प्लेट से हम देख रहे हैं. अभी ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि सेकंड प्लेट है ही नहीं, हमने केवल फर्स्ट प्लेट की बात की है. तो फर्स्ट प्लेट के कारण हमने रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की है. फर्स्ट रीजन, अब मान के चलिए कि यहाँ पर सेकंड प्लेट है ही नहीं, सेकंड प्लेट है ही नहीं, तो ये मान के चल रहे हैं हम कि सेकंड प्लेट नहीं है. मैं थोड़ा सा इसको छुपा देता हूँ सेकंड प्लेट को. तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर सेकंड प्लेट है ही नहीं, सेकंड प्लेट है ही नहीं, ये सेकंड प्लेट यहाँ पर नहीं है. तो फर्स्ट प्लेट के कारण रीजन फर्स्ट में, रीजन सेकंड में और रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने पता कर लिया. अब मैं सेकंड प्लेट के कारण इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करूंगा. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट इज E2. सो इन रीजन फर्स्ट व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ E2? इट वुड बी अवे फ्रॉम द प्लेट, अवे फ्रॉम प्लेट जाने के लिए, यानी प्लेट से दूर जाना है E2 को, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा. फर्स्ट रीजन में इस तरीके से हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, राइट. और सेकंड रीजन की बात करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस तरफ जाएगा, अवे फ्रॉम द सेकंड प्लेट जाना है. और थर्ड रीजन की बात करें तो E2 इस तरफ जाएगा. क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर है. चलिए इसके बाद में हम बात करें यूजिंग रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक field intensity, electric field intensity due to single infinite plane sheet. कितना था? It was sigma upon 2 epsilon 0. ये हमने कल कैलकुलेट किया था. E is the electric field, sigma is surface charge density, because यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है 2 एप्सिलॉन 0. ये रिलेशन हमने कल डिराइव किया था एक सिंगल प्लेट के लिए. तो अब हम बात करें दोनों प्लेट्स के लिए, तो इस रिलेशन का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, नो नीड टू डिराइव इट अगेन. सो फॉर रीजन फर्स्ट, अब रीजन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर जाने से पहले हम ये भी थोड़ा अज्यूम कर लें कि फर्स्ट प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है और सेकंड प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है. सिग्मा से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, सब जानते हैं. फर्स्ट प्लेट है तो सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर प्लेट नंबर 1 एंड सिग्मा 2 इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर प्लेट नंबर 2. सो नाउ वी कम टू रीजन फर्स्ट. रीजन फर्स्ट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू बोथ प्लेट्स 1 एंड 2. दोनों प्लेट्स के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट में, यदि मैं इसको E फर्स्ट लिखता हूँ तो क्या होना चाहिए? रीजन फर्स्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, देखिए
E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए ऐड हो जाएंगे। अब चूंकि ये दोनों लेफ्ट डायरेक्शन में हैं तो हम जनरली लेफ्ट में, जैसे ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ओरिजिन है, ओरिजिन के इस तरफ हम नेगेटिव लेते हैं और इस तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन यहाँ लिया है और दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस भी हो जाएगा। ओके, अभी वेक्टर लगाने की वैसे कोई खास आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर छोड़ दें अभी। E first is equal to minus E1 plus E2. So E first is equal to minus, what should be E1 using this relation? तो सिग्मा की जगह हो जाएगा सिग्मा 1 टू एप्सिलॉन 0। मीडियम, देयर इज नो चेंज इन मीडियम। पहले भी प्लेट के लेफ्ट और राइट में एयर ही था, अब यहाँ भी एयर है, तो ये परमिटिविटी चेंज नहीं होने वाला, तो ये सेम रहेगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस E2। व्हाट शुड बी E2? ओनली देयर इज ए चेंज इन सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा 2 हो जाएगा अब सिग्मा 1 की जगह, और 2 की जगह 2 रहेगा और एप्सिलॉन 0। नाउ व्हाट इज कॉमन हियर? यदि हम यहाँ देखें तो कॉमन क्या है? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन ड्यू टू बोथ द प्लेट्स। एंड यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और यहाँ आ जाएगा n कैप। दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म। चलिए अब हम बात करेंगे रीजन सेकंड की। रीजन सेकंड में हम चलते हैं। हमने फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किया, सिमिलरली वी कैलकुलेटेड फॉर रीजन सेकंड। रीजन सेकंड में जाने के लिए हम देखते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड रीजन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेकंड से इसको रिप्रेजेंट करें, एंड इट वुड बी इक्वल टू व्हाट? देखें एक बार वापस इस डायग्राम को, तो सेकंड रीजन ये है, इसमें क्या है? E1 राइट साइड में है इसलिए प्लस E1 होगा, और E2 लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस E2 होगा, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए E1 प्लस और E2 माइनस हो जाएगा। राइट, अब वही E1 का वैल्यू क्या होगा? E का वैल्यू क्या था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E1 क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 क्या हो जाएगा? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये हो गया E1 और ये हो गया सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? E सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इज कॉमन, एंड इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन, और इन वेक्टर फॉर्म वी में राइट E सेकेंड इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू n कैप। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन। अब हम ये यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा सबको। थर्ड रीजन में चलते हैं। थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो इन थर्ड रीजन, फॉर रीजन नंबर थर्ड, फॉर रीजन थर्ड में क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई थर्ड, इसकी बात करते हैं। सो उस डायग्राम को वापस देखते हैं। दिस वाज द डायग्राम, और ये रीजन थर्ड था हमारा। दिस इज द रीजन थर्ड। इन रीजन थर्ड E1 एंड E2 बोथ आर डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव एक्स में है, तो दोनों प्लस होंगे। E1 भी प्लस होगा, E2 भी प्लस होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड वुड बी द सम ऑफ E1 एंड E2, दैट इज E1 प्लस E2। सो रीजन थर्ड में E1 प्लस E2 ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और राइट साइड में डायरेक्टेड होगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं E1 का मतलब सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और E2 का मतलब सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा। और ये कैसे आया मैंने आपको बताया। E इज इक्वल टू क्या था? E इज इक्वल टू था हमारा
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो E1 के लिए सिग्मा की जगह सिग्मा 1 आ गया, E2 के लिए सिग्मा की जगह सिग्मा 2 आ गया। 2 एप्सिलॉन 0 में परमिटिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन थर्ड, राइट। इन वेक्टर फॉर्म इफ यू वांट टू राइट इट, you may write it like this: 2 epsilon 0 sigma 1 plus sigma 2 into n cap, right? So this is the electric field in region third. अभी तक हमने इस केस में जो बात की है वो दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, हमने ये माना कि दोनों प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। लेकिन हमारे पास यदि केस कैसा हो, इफ स्पेशल केस यदि हम कंसीडर करें, स्पेशल केस, एंड स्पेशल केस इज इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 is equal to minus sigma. What does it mean? It means my first plate is uniformly charged with positive charge. पॉजिटिव चार्ज से यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो प्लस सिग्मा हो जाएगी। और सेकंड प्लेट मेरी, मैंने सिग्मा 2 को क्या माना है, माइनस सिग्मा। इट मीन्स आई एम टॉकिंग दैट the second plate is uniformly charged by negative charge. This was the plate first and second. क्या चेंज हुआ, पहले दोनों प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट को पॉजिटिवली चार्ज रखा है और दूसरे को नेगेटिवली चार्ज्ड, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा हो जाएगा और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा हो जाएगा। तो वही मैं अब रीजन फर्स्ट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पता करना चाहता हूँ, रीजन सेकंड में अब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो पता करना चाहता हूँ, रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ये पता करना चाहता हूँ। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए E1 का जो डायरेक्शन होगा, E1 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E1 इस तरफ हो जाएगा डेफिनेटली, और यहाँ पर भी E1 इस तरफ हो जाएगा और यहाँ पर भी E1 इस तरफ हो जाएगा। E2 की बात करें तो E2 यहाँ पर इस तरफ होगा, प्लेट की तरफ होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड है, E2 इस तरफ हो जाएगा और यहाँ पर E2 इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन हो गई। अब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो जीरो होगा, यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट है तो जीरो होगा, और यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। वैसे ही जैसे कि पॉजिटिव के केस में यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो जीरो नहीं था, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो जीरो नहीं था, और यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे लेकिन हमारा जीरो क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की फॉर्म में लिए हैं। तो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 की फॉर्म में लिए हैं। यदि मैं सिग्मा 1 को प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 को भी प्लस सिग्मा लूँ तो सेकेंड रीजन में ऑब्वियसली जीरो आ जाना है, राइट। तो हम यहाँ पर मैं सीधे फर्स्ट रीजन वाले फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। फॉर रीजन फर्स्ट क्या फॉर्मूला था मेरा, फॉर रीजन फर्स्ट फॉर्मूला आया था E फर्स्ट इज इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इस फॉर्मूले का यूज करके मैथमेटिकली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो E फर्स्ट क्या हो जाएगा भाई, -1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, क्या आ गया, जीरो आ गया। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और डायग्राम भी यही कह रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं तो क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉलरिटी अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का, तो रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, जीरो आ गया। सिमिलरली यदि मैं रीजन सेकंड की बात करूं, फॉर रीजन सेकंड में फॉर्मूला मेरा आया था जब दोनों प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी तो 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ये आया था, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ये आया था। अब मैं यहाँ पर वही सिग्मा 1 की जगह क्या रख देता हूँ, प्लस सिग्मा, और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा रख देता हूँ, तो ये नहीं आएगा। यहाँ इसकी बात हम करेंगे। देखिए यहाँ पर E1 माइनस E2 फर्स्ट रीजन में E1
माइनस E2, तो ये हो गया E1 इज नेगेटिव एंड E2 इज पॉजिटिव, राइट, ये रिलेशन आया था। और E सेकेंड में हमारा रिलेशन था, सेकेंड रीजन में दोनों पॉजिटिव एक्स में है, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर वही सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, तो ई सेकेंड यहाँ, ओहो सॉरी, वेरी सॉरी, ये यहाँ पर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा। क्लियर, ये आया था हमारा रिलेशन सेकेंड रीजन में, 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो माइनस सिग्मा, तो सेकेंड रीजन में क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 इज प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस सिग्मा, तो क्या आ जाएगा, ई सेकेंड इज इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा ऊपर होगा और 2 एप्सिलॉन 0 नीचे है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ई सेकेंड क्या आ गया, सिग्मा 1 एप्सिलॉन 0। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया, और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। थर्ड रीजन में भी हम देख लेते हैं क्या सिचुएशन होने वाली है। रीजन थर्ड में यदि हम बात करें तो एक्सप्रेशन हमारा देखिए क्या आया था, 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सो ई थर्ड ये आया था 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अगेन यहाँ पर सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस सिग्मा 2 क्या आएगा, माइनस सिग्मा, तो ई थर्ड क्या आ जाएगा भाई, 1/2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा यानी 0, यानी ई थर्ड भी क्या आ गया यहाँ पर, ई थर्ड रीजन में ई थर्ड इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए फर्स्ट रीजन में 0 आया, प्लेट के बीच में 0 नहीं है, और यहाँ पर भी 0 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से जो प्लेट चार्ज्ड हैं, उन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। जबकि प्लेट्स के बाहर, चाहे वो लेफ्ट साइड की बात हो चाहे राइट साइड की बात हो, प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कैपेसिटर में आप सब जानते हैं, मैं हल्का सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। कैपेसिटर की जब हम बात करेंगे, कैपेसिटर जिसको आम भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, सेकंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना होकर के क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये ध्यान रखना है कैपेसिटर के केस में भी, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड